A very good evening, everyone. I am Sushmita and I will be your anchor for this winter school training program. On behalf of Vital Biotech, Agriculture Forum for Technical Education of Farming Society Kota, Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya Raipur, University of Agricultural Sciences Raichur Karnataka, Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya Bilaspur Chhattisgarh, and Farmers Park Hyderabad Telangana. I cordially welcome you all to this 21 days winter school training on fostering environmental sustainability through food security, agricultural, and modern science innovations. Vital Biotech is India's leading publication, research, and training institute whose goal is to tackle the world's most pressing problems related to food and agriculture. Whereas the Agriculture Forum for Technical Education of Farming Society Kota serves as a spiracle between the network of rural communities in India and other stakeholders such as government, development organization, and corporate entities. Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya IGKV Raipur, Chhattisgarh was established on January 20, 1987. IGKV has a primary mandate to provide education, conduct research, and offer extension services in the field of agriculture and related areas. Its work plays a vital role in improving agricultural practices and the lives of farmers in Chhattisgarh. University of Agricultural Sciences Raichur came into existence on 22nd November 2008 through bifurcation from USA Dharwad. It is the third agricultural university established in state after Bengaluru and Dharwad in Karnataka. With the establishment of USA Dharwad in 1986, Raichur still had the privilege of being the second largest campus and a major hub of education in this region. Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, established in June 2012, has nearly 95 government and private colleges affiliated in 4 districts of Chhattisgarh state, which together constitute the jurisdiction of ABVV. The university plans to develop a strategy for enhancing the range of educational approaches and the use of technology. As a part of this approach, the university plans to start classroom into state-of-the-art ones, enabling teachers to teach using a wide variety of media. Farmers Park is a platform committed to empowering organic and natural farmers across India by providing farm advisory services, free soil testing, and marketing support. It aims to promote sustainable farming practices, helping farmers maximize their yield while protecting the environment. Through their services, they strive to create a strong, eco-conscious agricultural community nationwide. This evening, we have the distinct privilege of welcoming an extraordinary individual whose remarkable contribution have made a lasting impact. With immense pride and respect, I present to you the esteemed Dr. Shravan Kumar Yadav sir, aka Dr. Organic. Sir pursued his BSc Honours Agriculture from Maharana Pratap University of Agriculture and Technology, Udaipur, graduating in 2012, and MSc in Agronomy from USA Dharwad in 2014, followed by a PhD in Agronomy from Maharana Pratap University of Agriculture and Technology, Udaipur in 2018. With over 6 years and 9 months of experience as a senior research fellow at the Directorate of Research MPUT Udaipur and 14 years of experience in organic farming. Sir has been actively involved in research, extension activities, training program, and exhibitions, while also organizing farmers and student training sessions. His dedication to his field has earned him prestigious recognition such as ICR GRF Award in 2012, the IARI Innovative Farmers Award in 2023, and several Best Poster Awards at national and international conferences. Sir has authored notable publications in esteemed journals focusing on organic farming, soil properties, and crop performance with NAS rating as high as 8.94. His research contributions include work on wheat, maize, and nutrient management, demonstrating his expertise in agronomy and commitment to advancing agricultural practices.
Respected sir, your remarkable contribution resonate like a symphony of success, touching countless hearts and inspiring many. Describing your impact in such a short time would not do it justice. Therefore, without further delay, it is my privilege to warmly welcome you and hand over this virtual stage of Winter School to you. Over to you, sir. हेलो। आप थैंक यू मैडम, और थैंक यू वाइटल बायोटेक, एंड थैंक यू जगदीश जी। आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया और इस ट्रेनिंग का पार्ट मुझे बनने का मौका मिला, और मैं कोशिश करूंगा कि मेरी जो एक्सपीरियंस है और मेरा जो काम है आप सभी बच्चों और साइंटिस्ट के सामने में उसको रख सकूं। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप मेरी इस पीपीटी को आराम से देखते जाइएगा और मेरी वर्ड्स को आप सुनते जाइएगा। बहुत कम समय अपन लेंगे और इस कम समय में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से एजुकेशन करने के बाद में हम अपनी स्टडी को पढ़कर एक अपना खुद का एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर सकते हैं। मैं सबसे पहले तो मेरा इंट्रोडक्शन मैडम ने दे दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। फिर भी मैं एक शॉर्ट में और देना चाहूंगा कि मेरा नाम डॉक्टर श्रवण यादव है और मेरा एमएससी एंड पीएचडी दोनों ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर है। और पिछले 9 साल से मैं महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय के अंदर एज ए सीनियर रिसर्च फेलो के रूप में काम कर रहा हूँ। तो टोटल 14 ईयर से मैं ऑर्गेनिक फील्ड के अंदर काम कर रहा हूँ, और उसके जो नवाचार है उसको यूनिवर्सिटी के साथ साथ अपने फार्म पर भी मैंने एस्टेब्लिश किया है। और उसका क्या इम्पेक्ट रहा उसको मैं बिल्कुल आपको एक छोटी सी स्टोरी के रूप में दिखाना चाहूंगा। तो मैंने देखो दो चीजें लिखी है कि आज नहीं तो कल जैविक ही है हल। जितनी भी आज समस्याएं हो रही है वर्तमान में, चाहे हेल्थ माने, पर्यावरण माने, या फिर सोइल का माने, इन सब की जो समस्याएं हैं वो सब केमिकल की वजह से हो रही है। और आने वाला समय ऑर्गेनिक फार्मिंग का है, और इसमें आप अच्छा अपना खुद का स्टार्टअप भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसा मैंने किया। और मेरी स्टोरी अभी मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ। नेक्स्ट मैडम। सबसे पहली बात है कि एजुकेशन। एजुकेशन आप लोगों में काफी लोग एग्रीकल्चर फील्ड से होंगे, और एमएससी भी होंगे, पीएचडी भी होंगे, और बीएससी किए भी बच्चे होंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इतनी सारी पढ़ाई करने के बाद में हम सबका एक मकसद होता है कि हम नौकरी लगे और नौकरी करें और अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में काम करें। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने जेआरएफ और एसआरएफ दोनों क्लियर की है, और क्लियर करने के बाद भी मैंने कम से कम 24 टाइम्स असिस्टेंट प्रोफेसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर और कई सारी एग्जाम के इंटरव्यू दिए हैं। लेकिन जब मुझे सक्सेस नहीं मिली तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं जो हमने जिस चीज फील्ड की स्टडी की है उसी फील्ड में काम किया जाए। तो अब फील्ड कौन सा करें? जिस फील्ड में काम किया वही उसी फील्ड का काम स्टार्ट किया जाए। मैं आपको बताना चाहूंगा एमएससी पीएचडी ऑर्गेनिक में की, इसलिए स्टार्टअप भी मुझे ऑर्गेनिक का करना था। 2020 में जब कोरोना आया तो कोरोना में मैंने एक छोटे से वर्मी कंपोस्ट का काम स्टार्ट किया, और मुझे नाम रखना था ब्रांड का नाम। तो ब्रांड का नाम क्या रखा जाए, उसके लिए मैंने कई सारा रिसर्च किया कि क्या नाम रखा जाए। तो दो चीजें सामने आई, और अपने आप से पूछा कि पढ़ाई किसमें की? ऑर्गेनिक में। डॉक्टरेट किसमें की? ऑर्गेनिक में। तो नाम रखा जाए डॉक्टर ऑर्गेनिक। इसलिए मैंने मेरा जो ब्रांड नाम था उसको डॉक्टर ऑर्गेनिक रखा। और ये नाम अपने आप में किसी का मोहताज नहीं है कि वो किसी को बता सके कि ये किस चीज का काम है। डॉक्टर ऑर्गेनिक मीन्स ऑर्गेनिक का काम है, और डॉक्टर मतलब जो बंदा कर रहा है वो ऑर्गेनिक में स्पेशलिस्ट है। इसलिए मैंने इसका नाम डॉक्टर ऑर्गेनिक रखा। नेक्स्ट स्लाइड। ये आप देख रहे हैं कि जो मेरे लेफ्ट दो फोटो है, लेफ्ट साइड के अंदर जो फोटो है जिसमें मैं हाथ से कुछ दिखा रहा हूँ, जिन सर को दिखा रहा हूँ, ये मेरे गुरुदेव है डॉक्टर शांति कुमार शर्मा सर, जो अभी एडीजी एचआरएम आईसीआर में है और ऑर्गेनिक फील्ड के बहुत बड़े एक्सपर्ट है। इन्होंने मुझे 10 साल के अंदर मेरा पीएचडी एंड जो एसआरएफ की सर्विस थी इनके अंडर ही थी, इन्होंने मुझे बहुत कुछ चीजें सिखाई। और वही नतीजा है, वही कारण है कि मैं आज अपना खुद का स्टार्टअप अच्छे से सक्सेस तरीके से कर रहा हूँ। इन्होंने मुझे ऑर्गेनिक फार्मिंग में कई सारे कंपोनेंट बताए, कई सारे मतलब प्रिंसिपल्स बताए कि आप किस प्रकार से काम कर सकते हैं। और हम कई जगह गए भी, कई सारे फील्ड भी देखे,
उसके कारण आज मैं अपना वर्मी कंपोस्ट का काम कर पा रहा हूँ। नेक्स्ट स्लाइड। आप देख पा रहे होंगे कि ये मेरे पिताजी खड़े हैं। ये फोटो है 2020 की, जब मार्च में कोरोना था और मुझे 4 महीने का मौका मिला था घर रहने का। तब मैंने खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करने का सोचा था। पिताजी को कैंसर था इस टाइम, ये कैंसर से सफरिंग थे, बिल्कुल वीक थे। मैंने इलाज करा लिया था, लेकिन डॉक्टर ने कहा था घर ले जाकर सेवा करो, 1 महीने में एक्सपायर हो जाएंगे। लेकिन देसी गाय, जिसको हम गौ माता कहते हैं, उनके गौमूत्र से आज ये बिल्कुल स्वस्थ है। शुरू शुरू में मुझे उन्होंने बहुत डांटा कि नौकरी नहीं लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि तू गोबर का काम करेगा। गोबर का काम कराने के लिए आपको पीएचडी नहीं करवाई, लेकिन आज उसकी जो रिजल्ट है आज अलग है। पहले के रिजल्ट अलग थे, आज के रिजल्ट अलग है। शुरू शुरू में मुझे उन्होंने बहुत डांटा, लेकिन आज देखिए आप आगे क्या क्या होता है। मैं इसी पीपीटी के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा। नेक्स्ट स्लाइड। 17 बेड से वर्मी कंपोस्ट की यूनिट मैंने स्टार्ट की थी, और आज मुझे आप लोगों को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि देश की सबसे बड़ी वर्मी कंपोस्ट अपने आप की कहूंगा, क्योंकि अभी मेरे प्रेजेंट टाइम में 2800 बेड्स है। ये पहले की पीपीटी है इसलिए मैंने अपडेट नहीं किया। आज 2800 बेड के साथ मैं काम कर रहा हूँ, और देश का ऐसा कोई कोना नहीं है, ऐसा कोई राज्य नहीं है, ऐसा कोई जिला नहीं है देश का जहां आज मेरा वर्मी कंपोस्ट और मेरे वंश और वर्मीवास नहीं जा रहा हो। नेक्स्ट स्लाइड। ये मेरी जयपुर के अंदर कई सारी जगह मेरी अलग अलग ब्रांचेज है, अलग अलग साइट्स है, जहां मैं आपको एरियल व्यू दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट स्लाइड। और सबसे जो मेन बात है कि आपका डेडिकेशन, जोश, जज्बा और जुनून, ये 4 चीजें जिस इंसान के पास होती है वो कुछ भी कर सकता है। मेरे पास नॉलेज था, एक्सपर्टाइज था, और टेक्निकल चीजें थी, बस उसको घर पे और धरातल पे उतारने की जरूरत थी। तो मैंने काम किया कि कौन सी मेथड किसान के लिए बेस्ट होगी, कौन सी मेथड अपनाने से किसान को फायदा होगा। आज गवर्नमेंट या अलग अलग प्राइवेट एनजीओ कई सारी मेथड्स को प्रमोट करते हैं, साइंटिस्ट ही प्रमोट करते हैं, लेकिन मैंने उसका 10 साल तक मैंने उसका बिल्कुल बारीकी से अध्ययन किया कि कौन सी मेथड किसान वर्मी कंपोस्ट बनाए तो वो अच्छी रहती है। आप नीचे नीचे राइट साइड में जो 4 प्रकार की अलग अलग विधियां दिख रही होगी लास्ट की कोने में, राइट साइड में डाउन की तरफ, उसमें अपर सरफेस है पहली फोटो, जो 4 फीट चौड़ी, 12 फीट लंबी और 1.5 फीट ऊंची है। दूसरी पक्का फर्श की है। तीसरी डाउन है, धरती के अंदर है, 2 फीट गहरी। और चौथी है जो प्लास्टिक की ग्रीन ग्रीन बेड दिख रही होगी आपको। तो ये चारों मेथड ही फ्रॉड मेथड है, ये सिर्फ किसान का खर्चा कराने वाली मेथड है। तो किसान, इन मेथड में दिक्कत क्या है, बनाने का खर्चा, एक एक बेड को बनाने का 5-5 हजार खर्चा लगता है, ईंट लगती है, कारीगर लगता है, सीमेंट लगती है। तो ये किसान के लिए फिजिबल नहीं है। और यदि आप ऊपर पक्का टिन शेड नहीं लगाएंगे, बरसात का एक्सेस पानी गिर जाएगा, तो इसमें पानी भर जाएगा चारों मेथड में, और पूरे पूरे केंचुए मर जाएंगे। लेकिन आप जो ऊपर तीनों फोटो देख रहे हैं, जो बिल्कुल सरफेस मेथड है, नीचे प्लास्टिक की पन्नी बिछी है और ऐसी गोबर की ढेरियां बनी हुई है, यदि एक्सेस पानी आ भी जाएगा तो साइड के अंदर पानी निकल जाएगा, एरेशन बराबर बनी रहेगी। और सबसे में जो मेन बड़ी चीज है कि इसमें जो लेबर है वो आसानी से बीच में चलकर काम कर सकता है। इसलिए इन चारों मेथड पे जब मैंने काम किया तो भारत सरकार का जो आईसीआर है, अपना जो एग्रीकल्चर सबसे बड़ा संस्थान, उनके द्वारा मुझे बेस्ट इनोवेटिव फार्मर का अवार्ड मिला। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जो सेंट्रल एग्रीकल्चर मिनिस्टर और आईसीआर के डीजी साहब ने दिया। नेक्स्ट स्लाइड। ये आप देख रहे हैं कि जो अपने आईसीआर के डीजी साहब है हिमांशु पाठक साहब, और सेंट्रल एग्रीकल्चर स्टेट मिनिस्टर कैलाश चौधरी द्वारा मुझे बेस्ट इनोवेटिव फार्मर का अवार्ड 2023 के अंदर मिला। और ये इसका मेन इसलिए मिला मुझे कि मैंने अलग अलग मेथड के ऊपर काम किया। नेक्स्ट स्लाइड। मैं आपको बताना चाहूंगा, इसी काम को देखते हुए भारत जो राजस्थान सरकार के सीएम साहब है, आत्मा प्रोजेक्ट चलती है अपने पंत भवन, कृषि पंत भवन से, उनके द्वारा मुझे बेस्ट ऑर्गेनिक फार्मर का अवार्ड मेरे पिताजी को मिला। और पिताजी को जब ये अवार्ड मिला, तब उनको कैंसर मतलब रिक्यूर हो गया था, अच्छा हो गया था, ठीक हो गया था। लेकिन जब उनको अवार्ड मिला उसके बाद में तो वो कैंसर को भूल ही गए। उनको इतना मोटिवेशन मिला कि यार मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, और कई लोगों को वो उन्होंने काम सिखाते हैं और बिल्कुल डेडिकेशन से काम करते हैं। तो आज मैं ये कहता हूँ, मैंने जब रिपोर्ट चेक करवाई तो आज कैंसर नेगेटिव है, और वो गाय की गौमूत्र और गोबर से हुआ। और
सबसे मेन चीज इस काम से हुआ। नेक्स्ट स्लाइड। इसी के साथ साथ ये देखो, ASRB के चेयरमैन साहब है और महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर साहब द्वारा मुझे बेस्ट इनोवेटिव फार्मर का अवार्ड मिला। नेक्स्ट स्लाइड। मैं आपको बताना चाहूंगा जिस प्रोजेक्ट में मैंने काम किया उसमें मैंने दिल से काम किया, और 2 बार 2 टाइम्स हमारे इस ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोजेक्ट को नेशनल वाइड अवार्ड मिला, और वो भी बेस्ट जैविक खेती का। तो हमारा जो यूनिट है जहां मैं काम करता था, उस यूनिट को भी 2 बार अच्छा अवार्ड मिला, नेशनल रिकॉग्नाइजेशन मिला, जिससे हैप्पीनेस होती है और एक डेडिकेशन और मजबूती मिलती है कि हमें काम करने की जुनून मिलती है। नेक्स्ट स्लाइड। मेरे पिताजी को जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी अवार्ड मिला, जो हमारे कृषि मंत्री थे उनके द्वारा ये अवार्ड मिला, तब भी उनको बहुत खुशी हुई। नेक्स्ट स्लाइड। जो हमारे पास में एक यूनिवर्सिटी है, श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उनके वाइस चांसलर साहब द्वारा भी मुझे बेस्ट जैविक किसान का अवार्ड मिला कि हमारे एरिया के अंदर जैविक खेती के फील्ड में मैं अच्छा काम कर रहा हूँ इसलिए, और कई लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ इसलिए उन्होंने मुझे अवार्ड दिया। नेक्स्ट स्लाइड। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी काम आप करें उसके लिए सबसे मेन चीज होती है मार्केटिंग, और मार्केटिंग जब तक नहीं होती है आप कोई भी काम कर लीजिए वो असफल ही होगा। मैंने मार्केटिंग का जो मेन फंडा रखा वो रखा लोगों को सिखाना, लोगों को ट्रेंड करना, कि जितने लोगों को सिखाऊंगा उतने लोग मेरे से जुड़ेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा जब 2020 में जब मैंने ये काम स्टार्ट किया, तो मेरा पहला पर्पस था कि मैं ऐसे वीडियोस बनाऊं, जो मैं काम कर रहा हूँ उसी की वीडियोस बना के मैं लोगों को दिखाऊं। मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, इंस्टाग्राम चैनल बनाया, और मैं आपको बताना चाहूंगा शुरू शुरू में बहुत कम व्यूज आते थे, कई लोगों का सपोर्ट कम मिलता था, लेकिन आज मेरे पूरे सोशल साइट्स में पूरे वीडियोस को लगभग 22 करोड़ लोगों ने देखा है। इसी के साथ साथ इंस्टाग्राम जो मेरा है उसमें पूरे वीडियोस को लगभग 18 करोड़ लोगों ने देखा है। और मैं ये चैनल का नाम और ये सब बाद में बता दूंगा आपको मैं। और इसी के साथ साथ जो मेरी सक्सेस स्टोरी है, लगभग 127 न्यूज़पेपर में पब्लिश हो चुकी है। आप गूगल पे भी सर्च करेंगे डॉक्टर सरवण वर्मी कंपोस्ट, तो उसमें मेरी कई सारी सक्सेस स्टोरी आ जाएगी, और आप उसमें पूरा मेरा काम पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये देखो, ये फोटो में आपको एक दैनिक भास्कर में न्यूज छपी थी, जिसमें जो ICAR ने मुझे अवार्ड दिया था, उस अवार्ड का मेन काम था उन चारों मेथड पे मैंने काम करना। और अभी तक एट प्रेजेंट टाइम तक मैं 1,10,000 किसानों को मेरे फार्म पर बिल्कुल निःशुल्क ट्रेनिंग देकर वर्मी कंपोस्ट और गो आधारित जैविक खाद्यान्नों के बारे में बताकर ये काम स्टार्ट करा चुका हूँ। और उनमें से लगभग 10,000 लोग तो ऐसे हैं जो आज मेरी बराबर काम कर रहे हैं और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। जब मैं सुबह उठता हूँ तो मेरे मोबाइल में हजारों मैसेज ऐसे होते हैं कि डॉक्टर साहब आपकी वीडियो देखकर हमने अच्छा काम स्टार्ट किया और आज हमारा घर चल रहा है। तो दैट इज द वेरी हैप्पीनेस फॉर मी, कि एक एजुकेशन का मतलब नौकरी करना ये सब कुछ नहीं होता है। आपके इस नॉलेज को लेकर कितने लोग अपना खुद का काम कर रहे हैं, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आप सब लोग यूथ को मैं ये कहना चाहूंगा कि जो स्टडी आप करते हैं उस स्टडी को करके आप अपना खुद का स्टार्टअप करिए और लोगों को सिखाइए। जब लोग उस काम को सीखकर खुद का काम करेंगे, तब आपको जो खुशी मिलेगी उसका कोई अंत नहीं होगा। मतलब आपको इंटरनली खुशी होगी। पैसा आने से सिर्फ माइंड से खुशी होती है, लेकिन इंटरनली खुशी तब होगी जब आपके काम को सीख कर कोई दूसरा करके अपना घर का पालन पोषण करता है, तो वो सबसे अच्छी खुशी होती है। नेक्स्ट स्लाइड। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई सारी यूनिट हमारे राजस्थान में काम कर रही है वर्मी कंपोस्ट की, लेकिन मेरी यूनिट ने राजस्थान के जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उनसे लाइसेंस लिया, बाकायदा हमारे फार्म पर पूरे जितने भी चीजों की एनालिसिस होती है, चाहे वो NPK हो, मैक्रो न्यूट्रेंट हो, माइक्रो न्यूट्रेंट हो, सभी के सभी एनालिसिस के लिए मैंने पूरी लैब लगा रखी है। और मेरा खुद का जो वर्मी कंपोस्ट निकलता है हर बार उसकी एनालिसिस होती है, उसके बाद में ही किसानों को सप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। मैं आपको बताना चाहूंगा मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर ऑर्गेनिक फार्मिंग जैविक खेती, और लगभग 45,000 लोगों ने इसको सब्सक्राइब कर रखा है, और कई सारे लाखों लोगों ने इसको देखा है, और देखकर आज वो लोग सीखते हैं और खुद की वर्मी कंपोस्ट या जैविक खेती का जो भी है
वो आप खुद स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी मैंने थोड़ा जिक्र किया था कि 1,10,000 यूथ अभी तक ट्रेनिंग लेने के लिए मेरे फार्म पर, एक ऐसा गांव जो दोनों साइड के हाईवे हैं और दोनों साइड से ही 12-12 किलोमीटर अंदर है। मेरे घर यदि सॉरी कोई टू अजनबी इंटरप्ट आदमी। सर। हेलो। सर यस सर, अगर अगर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज यूज कर सके, वो कुछ पार्टिसिपेंट साउथ से भी हैं तो लाइक ओके, ठीक दे है आर मैडम। नॉट अंडरस्टैंडिंग हिंदी। यस सर, थैंक यू सर। ओके मैम। आई विल टेल यू दैट कि मैं ट्रेनिंग अप्लाई करता हूं कि जितने भी भारत से, इंडिया से जो भी पार्टिसिपेंट आना चाहते हैं उनके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं ट्रेनिंग अवेलेबल कराता हूँ एवरी मंथ की 25 डेट को। और अभी इन इनकमिंग टाइम 31 January I will conduct training. In this training already 600 registration already done and 600 लोग 23 स्टेट से आ रहे हैं और ये ट्रेनिंग 31 जनवरी को होगी। तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रेनिंग कंडक्ट करवाता हूँ, जिसमें अभी तक 1,10,000 1,10,000 पीपल्स कैम एंड ट्रेंड बाय मी। नेक्स्ट स्लाइड। ये आप देख सकते हैं जो कंट्री वाइज जो ट्रेनिंग की फोटोग्राफ है कि कई कहाँ कहाँ से लोग आते हैं और ट्रेनिंग लेकर वो अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। This photograph you see that ki a real photography of my unit at my village. 2,800 wormy beds is there, and I will conduct every month 25 days free of cost training, and I will also manage food for the trainees. Next slide. So that is my story. कि in my small village, I will have India biggest vermicompost unit, Dr. Organic Vermicompost Farm, or with vermicompost, I will also make the different liquid organic manures for the promoting the growth of the crops. Like first is the Panchgavya. Panchgavya is very simple and very traditional input for the increasing the growth of the crops, and it is prepared by the different 5 component of cow like cow dung, cow urine, cow ghee and buttermilk and curd। 5 प्रोडक्ट जो गाय के हैं उनसे पंचगव्य बनता है, और इसका 3% का जो स्प्रे होता है उससे क्रॉप की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। आफ्टर सम टाइम आई आल्सो increase and bottling with Panchgavya for the supplying in the market. Next slide. Second input is that Jiva Amrit. Jiva Amrit is the basic and very important input for the organic and natural farming. Jiva Amrit have the different composition, and it have the very inoculant of the microbial culture। मैं आपको बताना चाहूंगा जीवामृत आज ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग की बेसिक नीड है। इस जीवामृत को बनाने के लिए पांच पांच चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। उसमें गोबर है गाय का, काव यूरिन है, जेगरी है, एंड पल्स फ्लोवर है, एंड बेनियान रूट सॉइल है। इन पांचों इनपुट से जीवामृत का निर्माण होता है, और जीवामृत को यदि हम फसलों में डालते हैं तो माइक्रोबियल कल्चर हमारी सोइल का बहुत अच्छे से बढ़ जाता है। बनाने का तरीका बहुत आसान है। फर्स्ट वी टेक 1 ड्रम 200 कैपेसिटी लीटर एंड पुट 10 kg cow dung, then 5 liter cow urine, 2 kg jaggery, 2 kg pulse floor एंड 1 kg बेनियान रूट सॉइल, बरगद के नीचे की मिट्टी। इन सबको मिलाकर 5 दिन तक हम इस ड्रम को छाया शेड के नीचे रखेंगे और इसको स्टिरिंग करते रहेंगे, इसको मिक्स करते रहेंगे। 5 दिन बाद में जो लिक्विड जो मेन्यूर तैयार होगा उसका नाम होगा जीवा अमृत। और 5 दिन बाद जब तैयार होगा तो इसको अप्लाइड कैसे करना है, इसको एप्लीकेशन कैसे करना है
इसको विद इरिगेशन करना है। जहां इरिगेशन की चैनल होती है वहां पे इस ड्रम को रखा जाता है और ड्रॉप बाय ड्रॉप उस चैनल में डाला जाता है, जिससे पूरे फील्ड में विद इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जीवामृत स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है। और इस जीवामृत की वन वन ड्रॉप में अरबों खरबों माइक्रोब्स होते हैं जो फील्ड में फैलेंगे। और जो यूरिया डीएपी कारण आज हमारी सॉइल खराब हुई है, वो इसकी वजह, इस जीवामृत की वजह से वापस सही होगी। माइक्रोब्स की संख्या बढ़ेगी, जिससे पूरी सॉइल सही हो जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड। इसी के साथ साथ एक है बीजामृत। मैं आपको बताना चाहूंगा, बीजामृत बनाने का तरीका बहुत आसान है। गोबर, काऊ डंग और लाइम और काऊ यूरिन, इन तीनों को मिक्स करके बीजामृत प्रिपेयर किया जाता है। और बीजामृत सीड ट्रीटमेंट के लिए काम आता है। और अ, बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर मैं लगभग 30 टाइप्स के लिक्विड ऑर्गेनिक मैन्यूर्स मैं लॉन्च कर रहा हूँ विद बॉटलिंग, और ये मार्केट में अवेलेबल होंगे। नेक्स्ट स्लाइड। एक इनपुट है वर्मीवास। वर्मीवास बहुत अच्छा इनपुट है, और इसको बनाने का जो वे है वो वेरी सिंपल है। देखो, वर्मीवास बनाने के लिए हम 3 पोर्ट लेते हैं। पहला पोर्ट, दूसरा पोर्ट, 3 पोर्ट। 3 पोर्ट को हम एक स्टैंड में रख देते हैं। जो अर्दन पोर्ट होते हैं, उन तीनों पोर्ट को वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर नीचे रख देते हैं। सबसे जो ऊपर वाला पोर्ट है, उसमें हम जो डॉक्टर वाली कैनोला होती है, जिससे हम ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी को छोड़ते हैं, तो ऊपर वाली पोर्ट में वो सबसे टॉप पोर्ट होता है, उसमें फिट कर देते हैं। और जो मिडल पोर्ट होता है, उसके पेंदे, उसके जो बॉटम है उसमें भी एक होल होता है, एक छेद होता है। तो बॉटम वाले पेंदे में जो पोर्ट है उसमें हम काऊ डंग डालेंगे और 1 kg अर्थुरम डालेंगे। आप समझिए, जो टॉप पोर्शन, बॉटम जो टॉप पॉट है उसमें हम पानी भरेंगे, जो मिडल पॉट है उसमें काउडंग और अर्थुरम भरेंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि केंचुआ, जो हम मिडल पॉट में गोबर, काउडंग और वर्म्स डाल रहे हैं, वर्म्स की बॉडी से लगातार लिक्विड निकलता है, एक पानी निकलता है जिसको हम वर्मीवास कहते हैं। तो मिडल पॉट में काउडंग है और वर्म्स है, और ऊपर वाली पोर्ट में आपका वाटर है। तो ऊपर वाली पोर्ट से ड्रॉप बाय ड्रॉप जो वाटर है उसको मिडल पोर्ट में हम छोड़ते हैं। तो मिडल पोर्ट में जो केंचुए का पानी है उसको वाश करके सबसे नीचे वाली पोर्ट में लेके आ जाएगा। तो ये होता है हमारा वर्मी वाश। और वर्मी वाश इस मेथड से बनाने की कॉस्टिंग आती है सिर्फ 5 रुपीज। यदि आप लॉन्ग टर्म स्टैंड बना ले, मटकिया कर ले, तो 5 रुपीज इसकी कॉस्ट आती है। और मार्केट में इसकी जो प्राइस है, सेलिंग प्राइस, वो 300 रुपीज लीटर है। तो इसका भी एक अच्छा आप बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। इसी के बाद में एक प्रकार है 10 परनी, और ये एक पेस्टिसाइड है, बायोपेस्टिसाइड है। इसको बनाने के लिए हम 10 डिफरेंट प्लांट्स की लीव्स लेते हैं, जिसको कोई भी एनिमल्स फीड नहीं करता है, क्योंकि इनकी लीव्स है ना, उसमें कई सारे एल्कुलेट्स होते हैं, जो बिटरनेस होती है उनका कड़वा होता है। तो सबसे पहले एक ड्रम लेंगे और उसमें 10 प्लांट्स, जिसकी लीव्स का जो टेस्ट है वो बिल्कुल बिटर होता है, जैसे नीम है, दथुरा है, आंकड़ा है, सीताफल, कस्टर्ड एप्पल है, कैस्टर है, मेरीगोल्ड है, तुलसी है, कनेर है। इसी प्रकार से कई सारे प्लांट जो आपके नेटिव में पाए जाते हैं, उनकी 2-2 kg लीव्स आप उस ड्रम में डालेंगे। और 5 kg काउ डंग, 5 लीटर काउ यूरिन। और इसके बाद में आप ½ kg ग्रीन चिली, ½ kg टर्मरिक, ½ kg जिंजर और ½ kg टोबैको पाउडर, ये सब चीजें डालकर उसको 40 डेज के लिए हम रखते हैं। और 40 डेज में जो अर्क तैयार होगा, जो कांडा तैयार होगा, जो लीव्स का जो पेस्ट तैयार होगा, दैट इज द वेरी बेस्ट फॉर द पेस्ट कंट्रोल। और इसका स्प्रे करते हैं 10% के रूप में। जो ड्रम के अंदर जो लिक्विड तैयार होगा, उसका हम 1 लीटर जूस निकालेंगे और 10 लीटर पानी में हम उसको मिक्स करके स्प्रे करेंगे। तो पूरे की पूरी क्रॉप्स के अंदर जितने भी इंसेक्ट होते हैं, वो सब के सब मैनेज हो जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। So sorry to interrupt, sir. Participants are saying like if you can please you say it in English.
Okay. Yes, sir. Dasparni is the biopesticide, and it make by the different leaves of the plants, which have the bitterness test, like neem, uh, currant leaves, custard apple leaves, datura leaves, papaya leaves, marigold leaves, and bill patar leaves, kannel leaves, lantana camara, and tobacco powder, green chili, ginger powder, like cow urine and cow dung. इन सबको जो क्वांटिटी मैंने यहाँ मेंशन कर रखी है, इन सबको एक ड्रम के अंदर मिक्स करके 200 लीटर वाटर मिक्स करके इसको हम 40 डेज के लिए हम रखते हैं. वी केप्ट फॉर 40 डेज, एंड आफ्टर 40 डेज वी स्प्रे फॉर द 10%. देन वी कंट्रोल ऑल टाइप ऑफ पेस्ट. नेक्स्ट स्लाइड. You can see different leaves and cow urine, cow dung we put in one drum and mix and kept for 40 days. Next slide. And in the last I will say and I will mention कि we I am by birth servant, but by education I became doctor servant, and by work I became doctor organic. So in life, if you do for any work and you gain your identity by the work, that is the very important. यदि आपको आपके वर्क से जाना जाए तो वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा. नेक्स्ट स्लाइड. And you also can visit my farm, and my farm in the Jaipur, Rajasthan. And how can you reach? So that is the address, and you can visit my farm. Next. Thank you, sir. आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझे. Thank you so much, sir, for making us learn the true meaning of education and entrepreneurship. The startup in organic farming was really well explained, and I'm sure that our audience must have received the motivation to do something great the way you did. Your successful startup that led you to win many national awards, as well as how it motivated your father to defeat cancer, has been really inspiring and motivating to all of us and our audience. Your way of making your product and providing free of cost training to people stuff is really appreciable. I'm also very sure that our audience must have easily grasped the organic way of preparing the way you explained Chivamrit, Bijamrit, Panchagavya, Varmi Wash, Dash Parneet, etc. As you explained all very simply and in effective way. We are very grateful to have you here, sir, and thank you once again. We deeply appreciate your generosity in sharing your profound knowledge with us, and we wish you continued success in all your path. Thank you, sir. Thank you, madam. I would like to invite participants to ask any question if they have any question for sir. फैंटास्टिक प्रेजेंटेशन सर. थैंक यू सर. कैसे हो? बढ़िया, एकदम परफेक्ट. So participants are saying that nice informative sessions and field-based presentation. They are very happy from your presentation, sir. Thank you, you madam. so much, sir. Thank you. थैंक यू सर. थैंक यू. Okay, sir. Thank you. Our second speaker is a remarkable person whose valuable work has made a lasting difference. It is with great respect and pride that I welcome Dr. Shushmita, Satish Kumar, sir. Shushmita, can you ask one question is there? Shravan sir, you are there? हाँ sir. One question is there. Yes, sir. Sir, this question is from Dr. H.R. Dhanetia. Sir, what is the expiry duration of vermicompost? With the proper moisture, we kept in the shade vermicompost, and with give the proper moisture, we kept for the 6 month without packing. But if we kept in with packaging,
then we kept only for 2 months. Thank you, sir. Okay, thank you. I think that's all from participants, sir. Thank you, sir. Thank you so much for this informative session. Thank you, ma'am. So, as I was saying, our second speaker is a remarkable person whose valuable work has made a lasting difference. It is with great respect and pride that I welcome Dr. Satish Kumar sir. Sir is working as an assistant professor in Department of Botany at Government College, Hisar, Haryana. He has more than 27 years of teaching experience in different institutions. He has published 13 research papers in national and international journals and has been the author of textbook entitled Environmental Studies for Undergraduate Classes and edited a book Biodiversity and Climate Change Trends in Present Context. He has presented papers in many national and international seminars and conferences and is the editor of 2 magazines and published articles on scientific and social issues. Respected sir, your invaluable contribution and unwavering dedication have left a profound impact, inspiring many and setting a remarkable examples for others to follow. Words cannot truly capture the extent of your influence in such a short moment. So, without further ado, on behalf of entire organizing team and participants, I welcome you, sir. We are eager to hear from you, sir. Over to you, sir. Thank you, Dr. Susmita. And I am sharing the slide. I am thankful to Dr. Jitendra Mehta ji, Thank you, sir. who has invited me to deliver a lecture in 21 days winter school training on fostering environmental sustainability through food security, agriculture, and modern science innovations. Now, my lecture is on problem of paddy stubble burning in northern region of India and its possible solutions. So it's the problem of northern India that during particularly in the month of October, November, and there is the great smoke and a lot of problem occurs to the peoples, particularly the children who suffer from bronchitis or such type of problems. So I have chosen the topic paddy stubble burning in northern India. So we will discuss the basic problem, its causes, impacts, management, and possible solution. In November 7, 2023, the Supreme Court directed the state government of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, and Rajasthan to ensure the stubble burning to stop it. And there was the statement of Justice Sanjay Kishan Kaul. Pollution is not a political game where one state shifts the blame to another depending on the ruling political dispensation. This is a murder of the health of the children in Delhi suffering from such type of health problem. So it's the great issue. देखिए जिस तरह से प्रॉब्लम आ रही है हर साल और सुप्रीम कोर्ट की ये स्टेटमेंट इट्स द मर्डर ऑफ द हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन, ये अपने आप में एक ग्रेट स्टेटमेंट है एंड वी हैव टू थिंक ऑन इट. अब है क्या स्टबल? स्टॉक्स ऑफ द राइस इज कॉल्ड स्टबल, द वेस्ट मटेरियल ऑफ राइस इज कॉल्ड पराली. आप पराली की बात करते हैं, पराली प्रबंधन की बात करते हैं. एंड फार्मर्स बर्न द रेजिड्यू ऑन देयर ओन लैंड, इट इज कॉल्ड पैडी स्टबल बर्निंग. पैडी स्टबल बर्निंग कौन से एरिया में है? यू नो दैट इट इज इन द नॉर्दर्न इंडिया. नॉर्दर्न इंडिया में कौन से स्टेट्स? हरियाणा, पंजाब, यूपी, even outer part of Delhi. So these are the major regions where there is the problem of paddy stubble burning. What are the major causes of the paddy stubble burning?
इस पे हम बात करते हैं। पहला फर्स्ट जो रीजन है दैट इज लेस टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव क्रॉप्स। पहले वाली स्लाइड पे आते हैं। लेस टाइम गैप बिटवीन द टू सक्सेसिव क्रॉप्स। हमारी जो व्हीट और पैडी दो मेन क्रॉप्स हैं। पैडी को 15th to 30th में इसके बीच में हम ट्रांसप्लांट इसको ग्रो करते हैं और जून के फर्स्ट वीक में हम फील्ड में इसको ट्रांसप्लांट करते हैं। सो व्हाट्स द प्रॉब्लम? When generally it is in the month of October or the first week of November. और wheat का क्या टाइम है? Wheat is grown in the month of November, sown in the month of November. So what's the problem? There is the less time gap. फार्मर को प्रॉब्लम ये आती है कि या तो इसको लेट व्हीट वेराइटी ग्रो करे या he have to burn the stubble in the field to clear the field for the sowing of the wheat. तो ये एक प्रॉब्लम है, ये एक रीजन है। नेक्स्ट रीजन की हम बात करेंगे एंड दैट इज द यूज ऑफ द मैकेनिकल हार्वेस्टर्स, मैकेनाइज्ड ऑफ द क्रॉप्स। अब ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे यू कैन सी दैट इज द कंबाइन हार्वेस्टर। कंबाइन हार्वेस्टर क्या करता है? इट कट द particularly the ball of the crop and the stubble is left behind. अब 20 to 30 सेंटीमीटर का जो स्टबल है वो नीचे रह जाता है और ऊपर से जो ग्रेन कंटेनिंग बॉल दैट इज हार्वेस्टेड। सो इट्स द प्रॉब्लम। पहले क्या करते थे, जो मैनुअल हार्वेस्टिंग थी उसमें हम जनरली इसको बेस से कट करते थे। नेक्स्ट इज द दिस not liked as fodder by the cattle. रीजन क्या है? इस क्रॉप को जैसे हम व्हीट का स्टबल है उसको हम यूज करते हैं फॉर द कैटल्स एज ए फॉडर। इसको हम एज ए फॉडर क्यों नहीं यूज कर रहे? द रीजन इज दैट इट हैज हाई सिलिका कंटेंट एंड लिग्नोसेलुलोज कंटेंट and the cattle do not like such high content of silica and lignocellulose in the paddy stubble. इसलिए नॉर्दर्न इंडिया में हम इसको एज ए फॉडर यूज नहीं करते। देन व्हाट वी यूज जनरली द व्हीट फॉडर। ये देखा गया कि जो बासमती राइस है उसको एज ए फॉडर यूज करते हैं, उसके स्टबल को इन some parts of the country. Scarcity of farm labor. पहले क्या थे? easily farm labor available थे। There are the big size farms and rice crop is grown in large areas. And mechanical harvesting has intensified due to the less availability of the manual farm laborers. अब आप ये देखिए जो 1971 में जितनी अवेलेबिलिटी थी, इन 2013 इट इज द डाटा दैट द फार्म लेबर अवेलेबिलिटी हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 62.7% टू 35.9%। इसलिए अब क्या है, फार्मर के पास एक ही ऑप्शन है दैट ही हैज टू बर्न द पैडी क्रॉप। Sorry to interrupt, sir. I would like to request participants, please don't draw these lines. Please don't do this. So the lack of awareness among farmers. अभी awareness काफी आ चुकी है, but still there is the need to more awareness among the farmers. Particularly किस चीज की awareness की जरूरत है? एक हम स्टबल मैनेजमेंट करें इन ए शॉर्ट पीरियड, ये जरूरत है। आप स्टबल मैनेजमेंट की काफी पीछे अवेयरनेस आई है फार्मर्स में, बट देयर इज द स्टिल नीड ऑफ मोर अवेयरनेस इन द शॉर्ट पीरियड। वन ऑफ द मोर रीजन दैट lack of incentive to farmers, no doubt the government is enhancing the incentive to farmers, but there is not it was not such amount in the previous years. So farmers are not provided much incentive in lieu of not burning of the crop residue in their fields.
तो इसलिए भी ये एक रीजन रहा है कि कार्टून से दिखाया गया है कि गवर्नमेंट, मार्केट, प्राइस, प्राइवेट कंपनी और क्लाइमेट, ये सारा अल्टीमेटली फार्मर्स हैव टू बियर इट. One more reason, that is the lack of responsibility. अब जब तक फार्मर्स इसको समझेगा नहीं, ये जो वेजिटेबल बर्निंग है, इसका लॉस किस किस पीपल तक जा रहा है, कहाँ बच्चे सफर कर रहे हैं, लोग सफर कर रहे हैं, एक्सीडेंट इंक्रीज हो रहे हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे. इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फार्मर्स को लेनी पड़ेगी एंड तभी इसकी हम प्रॉपर मैनेजमेंट कर पाएंगे. But some of the farmers deliberately burn the crop stubble in the fields and disobey the laws set up by the government to check the crop residue burning. हर साल काफी केसेस फार्मर्स पे होते हैं. FIR लॉज गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन फिर भी केसेस नो डाउट डिक्रीज हुए हैं, बट नॉट इरेडिकेटेड कंप्लीटली. नेक्स्ट बात करते हैं कि किस तरह से इसका इम्पैक्ट है वेजिटेबल बर्निंग का, एंड दैट इज ऑन द एनवायरनमेंट. ग्रीन हाउस गैसेज, एरोसॉल्स, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस. सो दीज आर द, अब देखिए CO2 है 70%, कार्बन मोनोऑक्साइड 7%, मीथेन अराउंड 1%, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड around 2.09%, they are coming in the atmosphere due to the vegetable burning. And the temperature is also rising. So, like greenhouse gases, it is called disturbing the ecological balance and environmental stability. अभी इतना टेम्परेचर राइज होगा तो आपको पता ही है कि ग्लोबल वार्मिंग होगी और उसके नेगेटिव इफेक्ट और बियर करने पड़ेंगे. धुआं है, देयर इज ड्यू टू द स्मोक लॉस ऑफ विजिबिलिटी. तो दीज आर, इट विल आल्सो कॉज द रोड एक्सीडेंट. तो ये प्रॉब्लम आ रही है. इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, आप फिगर में देख रहे हैं. ये केस कोई कोरोना का नहीं है कि मास्क लगाया हुआ है. ये प्रॉब्लम वेजिटेबल बर्निंग जो ज्यादा हो रही है इसके कारण है. पोल्यूटेंट्स आ रहे हैं, दे आर कॉजिंग द डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, एलर्जी एंड आई इरिटेशन. अब ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डाटा है कि 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज अफेक्टेड बाय एयर पोल्यूशन, और लगभग 7 मिलियन पीपल दे डाई एवरी ईयर ड्यू टू द एयर पोल्यूशन. ये एक बहुत बड़ा डाटा है. अब 1 टन वेजिटेबल बर्न करते हैं तो इट विल रिलीज 1460 किलोग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड, 2 kg सल्फर डाइऑक्साइड, 3 kg पार्टिकुलेट मैटर एंड अराउंड 199 kg S. And no doubt they will lead to the different type of health problems in human beings as well as in the animals. एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ काफी हम डिस्कस कर चुके हैं, और जब आप न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ते हैं कि द AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स इट हैज एक्सीडेड 400, 500 in Delhi, NCR regions, Noida, schools have been closed for the 5 days due to smog. And जनरली ये कहते हैं कि पंजाब और हरियाणा में इस वेजिटेबल बर्निंग के कारण ये स्मॉग आया है, और नो डाउट ये एक मेजर फैक्टर है. बाकी फैक्टर और भी हैं इसमें, ट्रैफिक भी है, व्हीकल्स जो एलिमिनेट कर रहे हैं स्मॉग, वो भी एक रीजन है. तो जनरली क्या होता है, जब बहुत ज्यादा स्मॉग होता है तो देयर इज द लॉस ऑफ विजिबिलिटी, और हम बात कर चुके हैं कि एक्सीडेंट इंक्रीज हो जाते हैं इन दिनों में. अब ये एक यहाँ पे दिखाया गया है पिक्चर, प्रदूषण की मार, प्राइमरी स्कूल बंद, और ये हर साल हो रहा है. इस साल भी स्कूल क्लोज हुए थे. इम्पैक्ट ऑन सॉइल क्वालिटी, जब भी बर्निंग होती है तो टेम्परेचर राइज होगा, और इससे सॉइल फर्टिलिटी इज अफेक्टेड एडवर्सली.
एंड ड्यू टू पेडिस्टबल बर्निंग कार्बन एंड नाइट्रोजन का लॉस सबसे ज्यादा होगा, पोटेशियम 20% और सल्फर 50% तक डिक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर जनरली सॉइल का 30 से 35 डिग्री सेल्सियस रहता है, बट ड्यू टू बर्निंग इट इंक्रीजेज अराउंड 42 टू समटाइम्स 46-48 डिग्री सेल्सियस। और न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स बर्निंग से न्यूट्रिएंट भी लॉस होगा, 50% तक सॉइल के न्यूट्रिएंट्स इसमें लॉस हो सकता है। इम्पैक्ट ऑन एनिमल स्पीसीज, no doubt there are the different type of animals, insect that are in the soil. जब भी हम इंसेक्टिसाइड डालते हैं या हर्बिसाइड डालते हैं, that is in the crop, and when we burn the stubble, जो हमने इंसेक्टिसाइड या हर्बिसाइड यूज किए थे, बर्निंग के कारण दे कम इन द एटमोस्फियर, और वो अलग से पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं। कई स्पीसीज हैं जब भी बर्निंग करते हैं या पेडिस्टबल बर्निंग होती है, देयर आर मेनी स्पीसीज दे आर गेट किल्ड। रीजन क्या है? कुछ तो जल जाते हैं, जो छोटे भाग नहीं पाते, क्योंकि ये एकदम से स्प्रेड होती है बर्निंग, द फायर स्प्रेड क्विकली इन द फील्ड, और व्हेन देयर इज द स्प्रेड ऑफ फायर that spread in the large area, and sometimes the small animals, they do not fled away, so they get killed, they burn, और ये काफी दर्दनाक भी होता है। रोड एक्सीडेंट जनरली मैं जाता रहा हूँ पंजाब के एरिया में, और एक बार मुझे अक्टूबर नवंबर में जब when I was crossing the area of Punjab, so there were 2 to 3 accidents, and that accident reason was smoke. Visibility, there is only fog, there is some visibility. But when the black smoke comes or mixed with the fog, it becomes heavy smoke. And heavy smoke, the visibility comes around 0. So the road accident increases during this period. Sensitive animal species, they cannot survive in this black smoke, so they are get killed. कई इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स भी हैं। जनरली वी ऑब्जर्व दैट देयर इज मीटर, इलेक्ट्रिक मीटर और इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स। जब फायर आती है फील्ड के अंदर तो दे आर आल्सो बर्न। ये टॉपिक मैंने इसलिए भी चूज किया है क्योंकि ये टॉपिक बिल्कुल करंट नॉर्दर्न इंडिया में है। साउदर्न इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है। It is the problem of mainly of northern India, where the paddy crop is sown. So how will you manage it? So there are no doubt there are many uses of paddy stubble. अब बासमती राइस है, बासमती राइस की आप पैडी को या स्टबल्स को यूज कर सकते हैं फोडर के लिए। वीट और मेज residue are mostly used as fodder for cattle in northern India, but in southern India, paddy stubble is used as primary source of fodder because of non-availability of wheat and maize straw. So paddy is less preferred due to high content of silica in it. But Punjab Agriculture University, Ludhiana, they started a pilot project and fermented the paddy straw to convert it into protein-rich feed for livestock. और ये काफी इसको सेल भी कर रहे हैं। PAU का एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था और इन्होंने इसको यूरिया के साथ मिक्स करके और काफी अच्छा फीड तैयार किया है। इससे जो मिल्क प्रोडक्शन है, मिल्क की क्वांटिटी है, वो भी इंक्रीज हुई है, एंड जो शॉर्टेज है फोडर की उसको भी हम मीट आउट कर सकते हैं। सो देयर इज द गुड अचीवमेंट। एंड द नेक्स्ट इज द यूज फॉर मशरूम कल्टीवेशन। जब भी मशरूम कल्टीवेशन करते हैं तो उसकी बेडिंग करते हैं। मोस्टली जो मशरूम दैट आर कल्टीवेटेड, एगेरिकस बाइस्पोरस है, बटन मशरूम, वाल्वेरिएला, वोल्वेसिया है, पेडिस्ट्रा मशरूम और प्लेरिटिक का स्पीसीज है। सो बेडिंग के लिए
हमें क्या चाहिए जिसमें लिग्नोसेलुलोज हो और लो कॉस्ट हो, एंड बोथ दीज कंडीशंस आर मीट आउट बाय द पैडी स्टबल। तो इसको आप यूज कर सकते हैं पैडी स्टबल को एज बेडिंग ऑफ द मशरूम कल्टीवेशन, और काफी यूज भी की जा रही है एज बेडिंग मटेरियल। पेपर प्रोडक्शन के लिए क्या करते हैं कि पैडी स्ट्रॉ और व्हीट रेजिड्यू 40-60 रेशियो में मिक्सअप करते हैं इसको। एक इसकी पल्प तैयार होती है फैक्ट्री के अंदर और उससे पेपर प्रोड्यूस किया जाता है। जो पार्टिकुलरली जो बोर्ड है या जो थिक पेपर्स हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस टेक्नोलॉजी। सो पेपर मिल में इसको काफी यूज किया जा रहा है। इससे होगा क्या, जो हम पेपर के लिए दूसरे वुड ले रहे हैं, तो दे कैन it can be used, and it will be helpful to check the deforestation. Next है use in geothermal power plant. एनर्जी की रिक्वायरमेंट हर साल इंक्रीज होती जा रही है और ये काफी इंक्रीज हो चुकी है, and it can be somehow meet out by using the crop waste in geothermal power plant to produce the electricity. And rice straw is a major source of lignocellulose and is being used in energy production. लगभग अब तो ये 1000 से ऊपर ज्यादा more than 1000 power plants हैं, and they are using the crop residue, and one of the most used crop residue is now paddy stubble, and it is producing the electricity, and around 15% of the overall renewable power produced in the country is from the paddy stubble. ये थोड़ा पहले का डाटा है, आज की डाटा की बात करता हूँ। अब फार्मर्स जो है दे कैन सेल देयर क्रॉप रेजिड्यू टू पावर प्लांट इंडस्ट्रीज एट द रेट ऑफ, अब ये कॉस्ट बढ़ चुकी है, 2015 का डाटा था, अब ये अराउंड ₹1000 पर टन के अकॉर्डिंगली सेल हो रहा है। फर्स्ट थर्मल पावर प्लांट जो इंट्रोड्यूस हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ बायोमास, इट वाज इन जलखेड़ी डिस्ट्रिक्ट, फतेहगढ़ साहिब, पंजाब। और जलखेड़ी में मैं गया भी हूँ और वहीं पावर प्लांट को मैंने देखा। अभी इस पे मेरा रिसर्च वर्क भी है। अराउंड 4 papers have been published on this paddy stubble burning by me. डाटा थोड़ा सा जो था, मेरे जो टोटल पेपर्स हैं अराउंड 36 papers I have published, and out of these 36 papers 4 papers are from this paddy stubble burning, and I have done a lot of work, and still I am doing the work on it, and getting the data from the field of 3 districts of Haryana, फतेहाबाद, सिरसा एंड हिसार। अब ये यूज इन बायोगैस प्रोडक्शन, ये मैंने, क्योंकि आपका विंटर स्कूल है और स्टूडेंट काफी जुड़े हुए हमारे से, तो बेसिक डाटा लिया है, इसमें मैंने रिसर्च डाटा को इंक्लूड नहीं किया है। ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है। यूज इन बायोगैस प्रोडक्शन, जो बायोगैस है दे कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम एग्रीकल्चर वेस्ट एंड कैन बी गुड अल्टरनेट ऑफ फॉसिल फ्यूल टू कंट्रोल पॉल्यूशन। अभी लिग्नोसेलुलोज का यहाँ यूज है। बायोमास अराउंड 300 cubic meter of biogas can be produced from 1 ton of paddy straw. अब बायोगैस को आप यूज कर सकते हैं अपनी किचन में भी। नेक्स्ट यूज इसका बेडिंग मटेरियल फॉर कैटल। अब ये विंटर सीजन में जरूरत पड़ती है। विंटर सीजन में जब आप अपने कैटल्स को यहाँ लेते हैं तो देयर इज द नीड ऑफ वार्म अप बेड। तो वार्मिंग बेड ड्यूरिंग द विंटर, इट paddy stubble और paddy straw can be used as the bedding material. इसका फायदा क्या होगा, एक तो ड्राई रखेगा नीचे से, हाइजीनिक है, कंफर्टेबल है, नॉन स्लिपरी रखेगा इन्वायरमेंट को। ये जो आपके कैटल हैं उसके लिए काफी अच्छा ये है और यूज भी किया जा रहा है। हरियाणा पंजाब में इसको यूज करते हैं, क्योंकि जनरली जहाँ पे कैटल है यूरिनेशन और डंग दे आर
done in that particular area, उससे वेट हो जाता है, तो उसकी वेटिंग वहां पे इसको नीचे यूज कर सकते हैं एज पैडी मटेरियल। कंपोस्ट फॉर्मेशन में इससे जो पहले लेक्चर था ऑर्गेनिक फार्मिंग पे, डॉक्टर ऑर्गेनिक के नाम से, तो उन्होंने बताया था वर्मी कंपोस्ट और दूसरे कंपोस्ट, और यहाँ हम पैडी स्टबल को भी यूज कर सकते हैं फॉर द कंपोस्ट फॉर्मेशन। ये नेचुरल फर्टिलाइजर है एंड इट कैन बी फाउंड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ क्रॉप रेजिड्यू। बाकी एनिमल वेस्ट और उनके साथ मिला के हम 3.2 टन फार्म यार्ड मैन्योर कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम 1 हेक्टेयर पैडी स्टबल ऑफ 1 हेक्टेयर। ये एक डाटा है जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं और एक अच्छी मैन्योर तैयार कर सकते हैं, और इसको आप यूटिलाइज भी कर सकते हैं। तो डियर पार्टिसिपेंट्स, इसको सॉइल के अंदर भी इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। पैडी स्टबल को आप रोटावेटर से उसी के अंदर उसको रोटावेटर को चला के और वीड सोइंग से पहले इसको सॉइल के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं, वहां उसके डिकम्पोजिशन होगी और डिकम्पोजर भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया गया था और इससे जो वीट क्रॉप थी उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है। ये भी एक रिसर्च डाटा हमें मिला है, अराउंड 20% इंक्रीज इन द यील्ड ऑफ द wheat has been reported। स्टबल को मल्चिंग कर सकते हैं फील्ड में, जैसे अभी बताया कि स्प्रेड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, सॉइल इरोजन नहीं हो पाएगा और मॉइस्चर कंटेंट को भी हम कंजर्व कर सकते हैं। सो यूज ऑफ राइस स्टबल एज मल्च हैज डिक्रीज द डिमांड ऑफ वाटर 3 to 11%। ये प्रॉब्लम जहाँ वाटर की स्कार्सिटी है और है, तो उसमें इसको हम यूज कर सकते हैं। एंड इट हैज आल्सो इंक्रीज द व्हीट yield and increase the efficiency of water utilization by 25% in comparison to non-mulched crops। ये भी एक यूज हो सकता है। एक ये बायोचार है। बायोचार जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में हम कंबसन करते हैं पैडी स्टबल की, तो ये बायोचार बनता है। ये एक तरह का चारकोल है, इसको हम यूज करते हैं सोइल के अंदर। कि फायदा क्या होगा, इट विल इंक्रीज द फर्टिलिटी। एक तो फर्टिलिटी इंक्रीज होगी बायोचार से, दूसरा एयरेशन रहती है, तीसरा जो सोइल की वाटर फिल्ट्रेशन बढ़ जाती है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ जाएगी सोइल की। सो इट इज यूज्ड एज बेस्ट फर्टिलाइजर एंड हैज द लॉन्ग टर्म परसिस्टेंस इन द सोइल। तो बायोचार आप बना सकते हैं पैडी स्टबल से। सो डियर पार्टिसिपेंट्स, कुछ और भी यूज हैं। आप इससे ब्रिक बना सकते हैं, ब्रिक में इसको यूज कर सकते हैं कले के साथ मिला के। एंड यू कैन बायो ऑयल आजकल इससे प्रोड्यूस कर रहे हैं। पायरोलाइसिस, अभी पीछे एक साइंस एग्जीबिशन थी, स्टेट लेवल साइंस एग्जीबिशन, एंड आई वाज द जज इन द स्टेट लेवल साइंस एग्जीबिशन, एंड वन टीम हैज shown the experiment, or you can say a model on the rapid pyrolysis technology to produce the biooil using the paddy stubble, and that was the best model and was selected the first or for the first prize। तो इस पे भी काम काफी चल रहा है, बायो ऑयल प्रोडक्शन। पॉसिबल मेजर्स टू कंट्रोल पैडी स्टबल बर्निंग। एक तो एयर एक्ट है 1981 एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये कहता है कि जब भी आप पैडी स्टबल बर्निंग करेंगे तो ये एक्ट आप पे लागू होंगे, एंड इट इज टू कंट्रोल द पैडी स्टबल बर्निंग। FIR लॉज होती है और इसमें फाइन का भी प्रोविजन है। गवर्नमेंट एजेंसी है, रिमोट सेंसिंग सेंटर है। अब ये कहाँ बर्निंग हो रही है, कैसे फायर केसेस हैं, किस एरिया में फायर केसेस हैं, दैट हैज बीन ऑब्जर्व्ड बाय द रिमोट सेंसिंग। एंड रिमोट सेंसिंग गवर्नमेंट एजेंसी, दे आर मॉनिटरिंग द इंसिडेंसेस ऑफ क्रॉप स्टबल बर्निंग।
अब इसमें जहां जहां जिस एरिया में होगा दे कैन इजीली फाइंड आउट इट। तीसरा ये है कि एपीसीडर और रोटावेटर ये अप्रूव करने के लिए आजकल यूज कर रहे हैं इसको, और गवर्नमेंट इसके लिए सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। गवर्नमेंट इज आल्सो मोटिवेटिंग द फार्मर्स टू कलेक्ट द क्रॉप रेजिड्यू, और उसकी बेल बना के आप सेल करिए, इसके लिए भी गवर्नमेंट मोटिवेट कर रही है। बायोमास बेस्ड पावर प्लांट्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड टू यूटिलाइज द पैडी स्ट्रॉ, और इसके लिए सब्सिडी का प्रोविजन गवर्नमेंट की तरफ से, देयर इज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ सब्सिडी। एंड awareness camps are being organized for the farmers to aware them about utilization of paddy stubbles, and government schemes are also about it. पूसा डिकम्पोजर लॉन्च किया है IARI दिल्ली से, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली। पूसा इंस्टीट्यूट भी बोलते हैं, मैं वहाँ रहा भी हूँ 3 months when I was preparing for the civil services exam, UPSC exam. So I was a research associate for the 3 months, but after the job I left the IARI. तो इन्होंने एक लिक्विड मिक्सचर तैयार किया है यूजिंग द 3 फंजाई, एस्परजिलस निडुलेंस, एस्परजिलस एवामोराई, फेनेरोचेट क्रायोस्पोरमियम एंड ट्राइकोडर्मा विरिडी. So it accelerates the process of paddy straw decomposition and makes the field ready for the wheat sowing in 25 days. ये डिकम्पोजर अगर आप फील्ड में यूज कर सकते हैं तो ये डिकम्पोजिशन करता है। फिर भी थोड़ा सा इसमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है, एंड देयर इज use of Pusa decomposer enhances chemical, biological and nutritional profile of the soil also. It is an efficient, effective, cheaper and practical technique to stop paddy stubble burning. लेकिन फार्मर्स का फीडबैक ये है कि अभी तक इतना ज्यादा इफेक्टिव ये नहीं है। 25 days इन्होंने लेस पीरियड बताया है, it takes more than 30 days. But there is the still need to improvement in this process, and no doubt we will get the more improved decomposer. स्टबल बर्निंग, ये डाटा जो है वो कल के न्यूज़पेपर का है, 19th जनवरी 2025 का डाटा है। 2023 में 24। हेलो, am I audible? Hello. Yes, sir. Yes, sir, you are audible. According to 30th November 2024 data, there is 34% decrease in the cases of fire incidents in Haryana, Punjab, NCR, UP, NCR, Rajasthan and Delhi. 20,440 केसेस डिक्रीज हुए हैं, और 30th नवंबर तक के जो केसेस थे दैट वर 37,602 इन कंपैरिजन टू 57,242 इन 2023। तो ये काफी इतना डिक्रीज होना 1 ईयर में। और ये कल के न्यूज़पेपर आप दैनिक ट्रिब्यून को पढ़िए, सॉरी दैनिक भास्कर को पढ़िए, इन द दैनिक भास्कर ऑफ 19th जनवरी 2025 ये डाटा उसका है, और ये डाटा आप नेट पे भी इसको सर्च कर सकते हैं। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3,333 करोड़ का एक फंड रिलीज किया है अंडर द क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट स्कीम फॉर द मैनेजमेंट ऑफ पैडी स्ट्रॉ। ये भी एक बहुत बड़ा फंड है, इसके काफी बेनिफिट हमें देखने को मिलेंगे। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की मीटिंग थी, कैबिनेट मीटिंग, और ये
भी एक दिन पहले का ही न्यूज़पेपर है, द गवर्नमेंट और हरियाणा हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज द इंसेंटिव फ्रॉम 7,000 rupees to 10,000 rupees per acre in lieu of growing crops other than paddy in the season. अगर आप पैडी क्रॉप की जगह कोई दूसरी क्रॉप लगाते हैं तो आपको 10,000 rupees पर एकड़ के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट देगी। इसका पर्पज ये है कि मोर यूज ऑफ वाटर बाय द पैडी क्रॉप। पैडी क्रॉप एक ज्यादा ये वाटर को यूज करती है, उससे वाटर लेवल डाउन है, तो एक तो ये बचेगा। दूसरा, पैडी स्टबल के केसेस कम होंगे। सेकंड जो स्टेप लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के द्वारा 2 days अगो, 2 दिन पहले की मीटिंग में लिया गया है, वो रिसेंट डाटा है। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा विल परचेज द पैडी स्टबल इन ₹1,500 per acre फ्रॉम द ईयर 2025। अब ये भी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का स्टेप है, तो ये भी हमें इसको भी थैंक यू ऑल ऑफ यू। इट वाज द बेसिक इंफॉर्मेशन। तो एनी क्वेश्चन? यस सुष्मिता। Yes, sir. Thank you, sir, for dedicating your time to share such valuable insights on this significant topic of paddy stubble burning in northern India, especially in Punjab and Haryana, which cause several air pollution and health issues and greenhouse emissions. Thank you, sir. Sir, there is one comment from Dr. H.R. Dhanetia. As you mentioned in the presentation, stubble burning removes herbicides and pesticides from soil. I think burning stubbles can be beneficial for soil health by eliminating persistent organic pollutants and adding ash content to the soil. On burning plants part and plant-based products, it refines the air, as mentioned in ancient text, by adding some volatile phytochemicals in the environment. हवन व यज्ञ इसी संकल्पना पर आधारित है। दूसरा, फसलों व पेड़ पौधों की बीमारियों से बचाने के लिए धुंध लगाई जाती है। देखिए धनेटिया जी, वन थिंग, व्हेन यू burn the paddy stubble, when there is burning, any type of burning, it increases the temperature. जब भी टेम्परेचर राइज होगा, then what will be the effect on the soil health? First, there will be the decrease in the number of useful microbes. There are many useful microbes in the soil, and when you burn the any crop residue, it will increase the temperature. जब भी टेम्परेचर राइज होगा, there are many useful microbes, they get killed, so there will be the less fertile soil. Second thing, when there is the increase in temperature, there is a loss of nutrients. जैसा मैंने बताया कि कार्बन है, पोटेशियम है एंड नाइट्रोजन है, उनका जो अमाउंट है 50% to 70% डिक्रीज हो जाता है। थर्ड, हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड सॉइल में है, but when there is the burning of residue, they will come in the atmosphere. Herbicide or pesticide, along with the nitrogen dioxide or carbon monoxide and carbon dioxide, they are very harmful to the health of the people as well as the other animals. ये एक और ज्यादा नुकसान होगा। तीसरा ये करें कि जो इंसेक्ट, हार्मफुल इंसेक्ट है, पेस्ट है, उनको कंट्रोल के लिए ऑर्गेनिक मेजर्स यूज करिए। ओनली एस को हम क्यों माने, ठीक है ना? एस इज नॉट द सॉल्यूशन, एस इज नॉट द ओनली मीन्स टू इंक्रीज द फर्टिलिटी। सो वी हैव टू think about to control the air pollution. Yes. Sir, Dr. H.R. Dhanetia is asking,
why are decomposers not harmful to living crops or standing crops? दूसरा डिकम्पोजर्स जो यूज किए हैं पार्टिकुलर, इसमें फंजाई यूज किए हैं। इस फंजाई दे अब जब भी हम हर्बिसाइड यूज करते हैं, when you use herbicide, they are specific in nature. They are specific to a particular weed. When we use weedicide, they are effective on a particular weed, not on the crop. Likewise, these decomposers, they decompose the crop waste, particularly the having the lignocellulose. Sir, you're not audible, sir. Like in I think there is some network issue. Pedestal. Sir, your voice was Hello? breaking. We couldn't. Yes, sir. We couldn't hear you answer, sir. Hello, am I audible? Yes, sir. Yeah, now audible, sir, but we couldn't hear your answer. Okay. It was I am breaking. repeating. Yes. I am repeating. Sir, thank you, sir. When we talk about the decomposer or any other VD, suppose there is a weedicide. Okay. Weedicide are specific in nature. A particular weedicide that is used for a particular weed. Likewise, the decomposer that is synthesized by the PUSA or IARI, it is specific in nature. It is for the decomposition of the lignocellulose containing stubble or the crop residue. It is not harmful for the crops. It is not harmful for the crops. Crops तो है ही नहीं, field वैसे भी open है. Field is open. Field is having only the crop residue. It will decompose the crop residue. Not harmful for the other crops. Living crop के लिए harmful, ये specific nature का है. इसमें जो fungi है, there are the 4 fungi. They are being used in a particular proportion. Any more question? Yes, sir. There is one question from Ramchandra Joshi. Sir, in spite of many new technologies, this year we could see the peak of air pollution. Why there is hindrance from the farmers in the adoption of new technology? Why there is a Good hindrance question. from the farmers in adoption of new technology? Good question. When we implement any new technology, new techniques, or new incentive, it takes time. There is a huge population of India, and there is the large area of Haryana, Punjab, UP, and other area where there is the paddy crop is grown. So it will take time. No doubt, as I have mentioned, the cases have decreased 34%. It is the good data, but there is still need to do more work on it, and it will take time, sir. But we will see that we will get the good result in the future. अभी कुछ जो हम इंक्रीज कर रहे हैं वो इसकी यूटिलाइजेशन इंक्रीज कर रहे हैं. अब पीछे हमने जो पावर प्लांट्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं. अब क्रॉप इसको जो सेल आउट कर रहे हैं फार्मर्स उस पे आ रहे हैं, और इसको जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो खरीद रही हैं. मैंने बताया था अभी आपको कि 1500 रुपीज पर एकड़ इसका पे कर रहे हैं गवर्नमेंट. So it will initiate or the farmers for the solution. Yes. I think that's all from participant side, sir. Thank you once again, sir, for your engaging and insightful presentation and for addressing all the participants' queries. I am certain that participants have gained immense knowledge thanks to your extensive expertise. We deeply appreciate your generosity in sharing your profound knowledge with us and wish you continued success in all your paths, sir. Thank you so much. Thank you, participants, particularly Dhanetia ji and Ramchandra ji, and thank you, Sushmita, and nice presentation, sir. खास तौर पे डॉक्टर जितेंद्र मेहता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. Sir, Thank you, sir. Just a minute, sir. One Shubham B is there. Shubham, you can unmute yourself.
if you want to ask. Shubham is there? Shubham B, you are requesting. You want to ask something for? I think he's not available. He's there, but not responding. Okay. Thank you, Jaya Mehta ji also, and he is responding in the chat. Thank you, sir. Thank you, madam. Thank you, sir. As we conclude tonight's program, I would like to express my heartfelt gratitude to our esteemed presenters. Your sharp insights and extensive experience have been truly inspiring and enriching the knowledge of all participants. It has been an honor to learn from you. We extend our best wishes for your future endeavors. I also thank our participants for their attentiveness and active engagement throughout the session. On the behalf of Vital Biotech, the Agriculture Forum for Technical Education of Farming Society Kota, Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya Raipur, the University of Agricultural Sciences Raichur Karnataka, Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya Bilaspur Chhattisgarh, Farmers Park Hyderabad Telangana, and the entire organizing team, I deliver my heartfelt gratitude to our esteemed guests, distinguished speakers, and enthusiastic participants for joining this 21 days winter school program. Your patience, active engagement, and attentiveness throughout the session have been truly admirable. Thank you once again for your invaluable contributions. Have a delightful evening. Thank you.